Hello everyone. So today we are going to start with the commissions of Unit 10. जो न्यू सिलेबस 2020 का आया है उसके अकॉर्डिंग हम आज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन स्टार्ट कर रहे हैं. So whether we are preparing for MPPSC, we are preparing for व्यापम, anything, but हमारा एक ड्रीम होता है कि हम कभी UPSC क्लियर करें. तो आज हम पढ़ेंगे कि उस UPSC का पूरा फोकस क्या है, UPSC में क्या कैसे वहाँ के पर्सन सेलेक्ट होते हैं, वहाँ के चेयरपर्सन कैसे सेलेक्ट होते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ यूपीएससी, दैट वी विल स्टडी इन टुडेज वीडियो. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस कमीशन. ये कमीशन आने से लोगों को एक डाउट हुआ है कि एक्ट्स हट गए हैं, वो हम आगे देखेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस कि एक्ट्स नहीं हटे हैं. सो दिस इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंटेड बाय मी अनुषा शर्मा. So this is about me. You can read about me here क्योंकि बहुत सारे लोगों को आके बड़ा confusion होता है कि कौन पढ़ा रहा है, आपने क्या किया है. So this is about me. Let us start with what is UPSC. UPSC क्या है, क्या UPSC का State Public Service Commission से क्या relation है, what we can learn from UPSC के portion से State Service Commission के portion के लिए, because ये दोनों ही हमारे points हैं. Union Public Service Commission एंड मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, MPPSC एंड UPSC दोनों हमारे सिलेबस का पार्ट है. सो वी आर स्टार्टिंग विद UPSC. द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया. रिक्रूटिंग एजेंसी है क्योंकि ये बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स कंडक्ट करती है. एग्जाम के अलावा भी UPSC के फंक्शंस हैं जो हम आगे देखेंगे. इट इज नॉट लाइक कि इट ओनली कंडक्ट्स द एग्जाम, इट ऑल्सो हैज सम अदर फंक्शंस व्हिच आर देयर इन द वीडियो. With the enactment of the Constitution on 26th of January 1950, the Federal Public Service Commission was accorded a constitutional status. Constitutional status मिल चुका है 26 जनवरी 1950 से ही. उससे पहले नाम क्या था? Federal Public Service Commission. It has become an autonomous entity and given the title Union Public Service Commission. क्या नेम दे दिया उसको? Union Public Service Commission, that is UPSC. That name has been given to Federal Public Service Commission on 26th of January 1950. और constitutional status मिल चुका है. So it is a constitutional body. Article number 315 to 323 in part 14 of the Constitution contains provisions related to the composition, appointment and removal of members along with independence, powers and functions of the UPSC. ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस इसी पॉइंट से आते हैं. आर्टिकल 315 से 323 which is given in part 4 of the Constitution, उसमें प्रोविजंस हैं किस किस के. कंपोजिशन क्या होगा UPSC का, मेंबर्स कैसे अपॉइंट होंगे, कैसे रिमूव होंगे, what will be the independence, how UPSC is independent, powers and functions of UPSC. All those things are given in between Article 315 to 323 in part 14 of the Constitution. In the end of the lesson, in the next video which we will be covering about UPSC part 2, in that we will see it article wise क्योंकि article पूछे जाते हैं. In the last paper article was directly asked, that's why we will study also about the articles. Coming to the next, composition. पहला यहाँ पे point ही क्या था? कंपोजिशन था. तो हम कंपोजिशन से ही स्टार्ट कर रहे हैं. द कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कंपोजिशन में क्या कंसिस्ट है, क्या होता है? एक चेयरमैन तो होता ही है ना. कंपोजिशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हु अपॉइंट्स? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यूपीएससी की बात हो रही है. स्टेट पीएससी जब आएगा तब हम अपना अलग से पढ़ेंगे. तो यूपीएससी में हु अपॉइंट्स द मेंबर्स? UPSC में members are appointed by President, Chairperson and all the members are appointed by President of India. The Constitution has not specified any strength of the Commission and left the matter on the discretion of the President who determines its composition. अब how many members will be there, who will be the chairman, ये सारा discretion is on President. It is not there in Constitution कि कितने members appoint करने हैं. UPSC का strength वहाँ पे नहीं दिया है. This question can आपको घुमा सकता है कि UPSC strength has been given in commission. No, it given in Constitution. No, it is not given in Constitution. It is on the discretion of the President कि वो क्या composition decide करते हैं. So usually 9 to 11 members are included
in the commission including the chairman को मिला के there are 9 to 11 members. क्वालिफिकेशन एंड सर्विस कंडीशंस, अब कौन हो सकता है, कौन जा सकता है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, व्हाट विल बी द सर्विस कंडीशंस, दैट वी विल सी. No qualifications are prescribed from being a member of UPSC except then 1/2 of the member of commission should have held office for at least 10 years under the government of India or under government of state. कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी है, तो क्या आप भी जाके मेंबर बन सकते हैं? Yes. But 1/2 of the member of the commission should have held the office for at least 10 years under government of India or government of a state. तो government of India या government of a state में at least 10 years तक office जिनने hold किया हो किसी भी positions पे, those members should be there in the commission. कितना? 1/2 मतलब 50% capacity पे ये members रहेंगे जो 10 साल तक किसी post पे थे. Other 50% is on the discretion of president. The constitution also authorizes the president of India to determine the conditions of service of the chairman and other members of the commission. तो service conditions भी कौन determine करेगा? President of India. अब यहाँ ये confusion नहीं होना चाहिए कि ये parliament करेगा, because most of the time हम ये सोचते हैं कि service conditions, salary, allowances, pensions, everything is done by parliament. नहीं, it is done by President of India. President of India Constitution ने President of India को authorize किया है to determine the service conditions. Next, tenure क्या होगा? अब choose तो कर लिया भाई, 9 to 11 members हो गए, chairman हो गए, अब tenure क्या होगा? So the chairman and the members of the commission hold the office for 6 years or up to the age of 65 years, whichever is earlier. टेन्योर होगा 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 years. इसको याद रखना, कभी 3, 4, 5, 6 चारों ऑप्शन होते हैं और हम सोचते हैं कि अरे ये तो यूपीएससी है, कौन 6 साल तक बिठाता होगा, 3 साल लगा दो. इट इज 6 years and up to the age of 65, not 70, 65 years. A person who holds office as a member of Public Service Commission shall, on the expiration of his tenure of office, be ineligible for reappointment to that office. That person जो कोई member of UPSC रह चुके हैं या chairman of UPSC रह चुके हैं, अपनी term के expiration के बाद उसी office में reappoint नहीं हो सकते. मीन्स एक बार जो यूपीएससी चेयरमैन बन गए वो दोबारा यूपीएससी चेयरमैन नहीं बन सकते. एक बार जो मेंबर बन गए वो दोबारा मेंबर नहीं बन सकते. अब इसकी बाकी डिटेल्स लास्ट में हैं कि कौन क्या बन सकता है. सो इट इज फॉर नाउ व्हाट यू हैव टू लर्न इज कि उसी ऑफिस में रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता. ही इज इनएलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस. इतना इज क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. अब रिमूव कैसे कर सकते हैं भाई? हमें तो पसंद नहीं आ रहे, प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आ रहे, फिर क्या करेंगे? तो रिमूवल और रेजिग्नेशन कैसा होगा? द चेयरमैन और मेंबर्स कैन रिजाइन एनी टाइम फ्रॉम देयर ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट. चेयरमैन और मेंबर जो हैं वो किसी भी टाइम अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकते हैं बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट. ऐसा नहीं है कि आप आ गए तो रिजाइन नहीं कर सकते. दे कैन रिजाइन एनी टाइम बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट. किसको एड्रेस करेंगे? प्रेसिडेंट को. They can also be removed before the expiry of their term by the president in the manner as approved in the constitution. अब हटा भी तो सकते हैं, फिर कैसे हटाएंगे? तो they can be removed by president, but in the manner as provided in the constitution. ऐसा नहीं कि president सर को पसंद नहीं आए, आज कुछ बात हो गई तो कल president सर ने उनको हटा दिया, ऐसा नहीं होगा. They cannot be removed from their office अगर कॉन्स्टिट्यूशन में वो मैनर नहीं लिखा है तो, और अगर रिमूव करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के मैनर पे ही रिमूव करना रहेगा. इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए भी आ जाता है कि अभी एक रिसेंटली आंध्र प्रदेश में इलेक्शन कमीशन वाला केस चला कि उनका टेन्योर कम करके उन्हें हटाने की कोशिश करी गई. तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस बट इन द मैनर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे. तो अब क्या लिखा है, चलो देखिए. The president can remove the chairman or any other member of UPSC from the office under the following conditions. क्या conditions लिखी हैं? If he is adjudged insolvent, bankrupt हो गए, वो insolvent हो गए, bankrupt हो गए, he can be removed. If he is engaged in any paid employment outside his office during his tenure,
अपने टेन्योर में वो अपने ऑफिस के अलावा कोई और पेड एम्प्लॉयमेंट में एंगेज हैं तो भी यू कैन रिमूव, यू मतलब प्रेसिडेंट कैन रिमूव, आप नहीं। If he she is unfit to continue in office by the reason of infirmity of mind or body, mind or body का infirmity है, he is not able to continue, that's why president can remove him or her. और एक ग्राउंड है, और कैसे रिमूव कर सकते हैं? The president can also remove the chairman or member of the commission on the grounds of misbehavior also. Misbehavior के ग्राउंड पे भी हटा सकते हैं। तो misbehavior क्या होगा? आज सर को विश नहीं किया तो सर हटा देंगे? नहीं, मिसबिहेवियर के ग्राउंड्स पे हटाया जा सकता है, बट if the president has to remove chairman or members of the commission on this ground of misbehavior, then she has to refer the matter to the Supreme Court for an inquiry. Misbehavior के टर्म्स पे अगर हटाना है तो मैटर हैज टू बी रेफर्ड टू सुप्रीम कोर्ट। किसको रेफर करना होगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा मैटर फॉर एन इंक्वायरी। If after the inquiry Supreme Court upholds the cause of removal and advises so, the president can remove the chairman or the member of the commission. तो अगर इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि yes the cause of removal was fine and advise करते हैं कि इन्हें रिमूव करना चाहिए, then president can remove the chairman or the member of commission. तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो प्रेसिडेंट नहीं मानेंगे, बाइंडिंग एडवाइस है। In this case, the advice given by the Supreme Court is binding on the president. कैसी है? Binding है, मतलब बिल्कुल जो बोला है वो होगा। Whatever the Supreme Court says, वही decision होगा। It's like if president want to remove someone, chairman or member from the post on the grounds of misbehavior, then president has to refer the matter to the Supreme Court, and when the Supreme Court upholds the cause and removal and advises the removal, then only president can remove the chairman or the member. If Supreme Court says no, then it is a no. Next, अब ये misbehavior क्या है? विश नहीं किया तो सर कोर्ट में केस दे देंगे? नहीं. The chairman or the member of UPSC is removed on the grounds of misbehavior if she is. Misbehavior के conditions क्या हैं? Given below. Interested in any contract or agreement made by the government of India or the government of any state. कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एग्रीमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का, उसमें मन लग रहा है, भाई बड़ा पसंद आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, कहीं से उनको उसमें जाना है, तो इन दैट केस द मेंबर और द चेयरपर्सन कैन बी रिमूव्ड. पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑफ एनी सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, या इसी तरह के किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में अपन अपना इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, अपन अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो फिर टाटा हो जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे मिसबिहेवियर के ग्राउंड्स पे. नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस. अब इतना सारा दे दिया है तो क्या ये ऑफिस इंडिपेंडेंट है या सिर्फ प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंस है, पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है. लेट्स सी, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर 6 years और 65 years का टेन्योर, अप टू द एज ऑफ 65 years और 6 years का एज टेन्योर होगा. सिर्फ इन ग्राउंड्स पे निकाला जा सकता है, इसके अलावा किसी भी ग्राउंड्स पे आपको वहां से हटाया नहीं जा सकता. तो मेंबर्स आर सिक्योरिंग, मेंबर्स हैव गॉट द सिक्योरिटी ऑफ देयर टेन्योर. उन्हें अगर गलत नहीं किया है तो उन्हें कोई नहीं हटा सकता. कंडीशंस ऑफ सर्विस कैन नॉट बी चेंज्ड फॉर डिसएडवांटेज. यहीं आया था वो आंध्र प्रदेश का इलेक्शन कमीशन वाली बात कि एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद जो कंडीशन ऑफ सर्विस है, जो एक बार डिसाइड हो गया है कि आपकी सर्विस कंडीशंस नेक्स्ट 6 years तक इतनी रहने वाली है, ये रहने वाली है, डिसएडवांटेज के लिए कभी भी कम नहीं करी जा सकती. उस पर्सन को जो उस पोस्ट पे बैठे हैं उनका टेन्योर 6 years है, आप कल को अमेंडमेंट लाके बोल दो कि नहीं टेन्योर तो 2 years है, 2 years बाद जाइए, तो दिस कैन नॉट हैपन. बिकॉज जो सर्विस कंडीशंस अपॉइंटमेंट के टाइम थी वो ही सर्विस कंडीशंस फॉलो होंगी आगे भी. दे कैन नॉट बी चेंज फॉर डिसएडवांटेज. इनएलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, उसके उस पोस्ट के बाद, जैसे यूपीएससी चेयरमैन तो कोई और पोजीशन होल्ड कर ही नहीं सकते. मेंबर्स जो हैं वो चेयरमैन वाली पोस्ट ले सकते हैं, लेकिन आप फर्दर एम्प्लॉयमेंट और कहीं नहीं ले सकते. कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो किसको फेवर करोगे? जब आगे कुछ मिलना ही नहीं है तो किसको फेवर करोगे? सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन आर चार्ज ऑन सीएफआई. सैलरी, पेंशन, अलाउंसेस सब सीएफआई से आपको चार्ज हैं, पार्लियामेंट के ऊपर नहीं है कि आपको नहीं देंगे.
वो जने का अपॉइंटमेंट नहीं किया तो पार्लियामेंट सैलरी नहीं देगी, नहीं, इट इज चार्ज ऑन CFI, आपको सैलरी अलाउंसेस और पेंशन मिलने वाले हैं। फंक्शंस ऑफ यूपीएससी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों को लगता है सिर्फ एक एग्जाम कंडक्ट करता है यूपीएससी या 4 एग्जाम्स कंडक्ट करता है, बट यूपीएससी के बहुत सारे फंक्शंस। कंडक्ट एग्जामिनेशंस फॉर अपॉइंटमेंट फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज ऑफ द सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज। तो पहले तो ऑल इंडिया सर्विसेज पे, सेंट्रल सर्विसेज पे, और जो यूटीज वगैरह सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज हैं उनकी पब्लिक सर्विस पे अपॉइंटमेंट एग्जाम कंडक्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट टू सर्विसेज एंड पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यूज वगैरह के थ्रू भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट हैं उस पर रिक्रूटमेंट करते हैं। असिस्ट द स्टेट इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम्स ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट फॉर एनी सर्विस फॉर विच कैंडिडेट पोजेसिंग स्पेशल क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड। तो कोई ऐसी पोस्ट है जिसपे कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, जॉइंट रिक्रूटमेंट करना है सेंट्रल और स्टेट को, इन दैट केस यूपीएससी कम्स इनटू द पॉइंट। Serves all or any of the needs of the state on the request of the governor and with the approval of the president। तो अगर गवर्नर रिक्वेस्ट करें किसी स्टेट की तरफ से कि हमारे स्टेट की ये सारी नीड्स यूपीएससी को फिल करनी है, हमारे यहाँ पे ये चीज़ का पर्टिकुलर कमीशन नहीं है या वर्क नहीं कर रहा है, यूपीएससी हैज़ टू डू दिस, तो उस गवर्नर की रिक्वेस्ट को प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ यूपीएससी उस चीज़ को उठा सकता है। मीन्स अगर गवर्नर रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूपीएससी से, उसको प्रेसिडेंट अगर अप्रूव कर दें तो यूपीएससी कैन सर्व ऑल और एनी ऑफ द नीड ऑफ द स्टेट, ये हो सकता है। और क्या है, इट इज कंसल्टेड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। अब कंसल्टिंग बॉडी भी है, लेकिन ये कंसल्टेंट कैसा है वो आखिरी में आपको पता चलेगा। तो इट इज ऑल्सो अ कंसल्टिंग बॉडी। कहाँ कहाँ किस किस चीज़ों पे कंसल्ट होता है? मैथड ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर सिविल पोस्ट, सिविल पोस्ट के लिए जो मैथड ऑफ रिक्रूटमेंट होती है उसमें कंसल्ट होता है। मींस अगर कल को यूपीएससी के एग्जाम में से ऑप्शनल हटना है या कोई चेंज आना है या एथिक्स का सब्जेक्ट आना था, तो रिक्रूटमेंट के मैथड पे सिविल पोस्ट पे यूपीएससी का कंसल्टेंट रिक्वायर्ड है। प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट, प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स। अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और ट्रांसफर में जो भी प्रिंसिपल फॉलो होने हैं उनके लिए भी यूपीएससी से कंसल्ट किया जाता है। All disciplinary matters affecting a person under the government of India in a civil capacity like withholding of promotion, withholding of increment, removal from service और compulsory requirement में यूपीएससी को कंसल्ट करते हैं। मीन्स अगर आप कल ब्यूरोक्रेट बनते हैं और किसी भी मैटर से आपका प्रमोशन या आपका इंक्रीमेंट रोका जा रहा है, रोका जाना है, इन दैट केस आप अगर यूपीएससी से सेलेक्टेड हैं तो यूपीएससी को कंसल्ट किया जाएगा कि इस पर्सन का ये चीज़ रोका जा रहा है, इसको कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जा रहा है, तो यूपीएससी इज कंसल्टेड इन दैट मैटर। Any claim from reimbursement of legal expenses incurred by a civil servant in defending legal proceedings against any act done for execution of duty। कल को आप ड्यूटी कर रहे हैं और कोई लीगल केस आप पे आ जाता है ड्यूटी करने के कारण, ड्यूटी के कारण अगर कोई लीगल केस आता है तो उसके लीगल एक्सपेंसेस जो आपने इंक्योर करे उसका रीइंबर्समेंट इफ यू वांट, अगर आपको वो पैसा गवर्नमेंट से चाहिए तो इन दैट केस यूपीएससी को कंसल्ट किया जाता है। एनी क्लेम फॉर अवार्ड और पेंशन वाइल इंजर्ड ऑन ड्यूटी, अगर आप ऑन ड्यूटी इंजर हुए हैं तो उसमें कोई अवार्ड देना है, कोई पेंशन देनी है, कुछ देना है, इन दैट केस यूपीएससी इज कंसल्टेड। मैटर ऑफ टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स जो मोर देन 1 ईयर है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। मोर देन 1 ईयर के जो टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स हैं उन केसेस में भी यूपीएससी का कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है, बट लेस देन 1 ईयर में नहीं है, ये यूपीएससी का लिमिटेशन है, अभी आगे आएगा। मैटर्स रिलेटेड टू रीअपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन ऑफ सर्विस ऑफ एनी रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, किसी रिटायर्ड सिविल सर्वेंट को रीअपॉइंट करना है, उनकी सर्विस एक्सटेंशन देना है उन्हें, जैसे अभी कोविड के टाइम पे बहुत सारे सर्विस एक्सटेंशन दिए गए हैं, रिटायरमेंट नहीं दिया गया, तो इन दैट केस अगर कोई सिविल सर्वेंट को रीअपॉइंट करना है या एक्सटेंशन देना है तो यूपीएससी हैज़ टू बी कंसल्टेड। अब लिमिटेशंस क्या हैं? तो सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ये जितने भी कंसल्टेंट्स थे ये कंसल्टेंट ही हैं, एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती, पूछना है बस, जो बोल दें ठीक है, वो बाइंडिंग नहीं होती। तो फर्स्ट इज while making reservation of appointment for backward classes SC and ST UPSC is not consulted।
जो रिजर्वेशन का अपॉइंटमेंट के टाइम पे जो रिजर्वेशन डिसाइड होता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, उसमें यूपीएससी से कंसल्ट नहीं किया जाता. जो रूल है उसके अकॉर्डिंग यूपीएससी को रिक्रूट करना होता है. विथ रिगार्ड टू चेयरमैन और मेंबरशिप ऑफ द कमीशन, the post of the highest diplomatic nature and a bulk of group C and D services UPSC is not consulted. तो जो हाईएस्ट डिप्लोमेटिक नेचर की पोस्ट होती हैं, जहाँ पे बहुत हाई ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट करना होता है, या फिर जो चेयरमैन या मेंबर्स अपॉइंट होने होते हैं, या ग्रुप सी ग्रुप डी की बड़ी बल्क की सर्विसेज हैं, उसमें यूपीएससी को कंसल्ट नहीं करते. फॉर टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स लेस देन 1 year यूपीएससी इज नॉट कंसल्टेड. ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया. The president can exclude posts, services and matters from the purview of UPSC. This is there in the powers of the president कि वो कुछ पोस्ट को, कुछ सर्विसेज को, कुछ मैटर्स को यूपीएससी के पर्व्यू से हटा सकते हैं. मीन्स यूपीएससी के पास उसकी पावर फिर नहीं रहेगी. दिस इज विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ दीज आर द आर्टिकल्स रिलेटेड टू यूपीएससी. लेट अस सी. ये आर्टिकल्स का डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि आर्टिकल्स डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कई बार. आर्टिकल नंबर 315, इट टॉक्स अबाउट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट. 315 में पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हुई है. 316 में अपॉइंटमेंट और टर्म ऑफ ऑफिस की बात हुई है. 317 में रिमूवल एंड सस्पेंशन. 318 में पावर्स टू मेक रेगुलेशंस मींस फंक्शंस. 319 में प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग ऑफिस बाय द मेंबर्स ऑफ कमीशन मीन्स कि रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है. 320 में फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन. 321 में पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस. 322 में एक्सपेंसेस की विच आर चार्ज ऑन सीएफआई. 323 में रिपोर्ट्स. अब ये क्या है, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, बिकॉज देयर आई विल बी एक्सप्लेनिंग द होल कंटेंट ऑफ द आर्टिकल्स. नेक्स्ट हम लिमिटेशंस कर रहे थे. इट इज कॉल्ड वॉचडॉग ऑफ मेरिट लिस्ट. मेरिट में जो आया है उसका वॉचडॉग है. मेरिट में जो आया है वो आपको करना पड़ेगा, उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा. तो एक्चुअली थोड़ा सा ना इस प्रोसेस पे कई बार ये चीज़ें हो जाती हैं कि ये वाली प्रोसेस जो एग्ज़ाम वाली है इसको रेलेवेंट नहीं मानते सिविल सर्विसेज को, सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करने के लिए. लेकिन ये इस समय बेस्ट अवेलेबल है. कई बार प्राइम मिनिस्टर हैज़ ऑल्सो सेड कि इसको थोड़ा बहुत चेंज करना है, बट अभी के लिए बेस्ट अवेलेबल यही प्रोसेस है. दैट्स वाई इसको बोलते हैं यूपीएससी को कि वॉचडॉग ऑफ मेरिट लिस्ट है. Classification of services, pay and service condition, cadre management, training etc. is under DOPT. ट्रेनिंग एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आपकी ट्रेनिंग, सर्विस कंडीशन, कैडर मैनेजमेंट वो डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के पास चला जाता है, यूपीएससी के पास नहीं रहता. तो मतलब एक वॉचडॉग ही हो गया कि बस आपको एग्जाम लेना है और आपको रिजल्ट देना है, उसके बाद का काम डीओपीटी करेंगे. Recommendations made by UPSC are only of the advisory nature and are not binding on the government. Recommendations जो UPSC के हैं वो advisory nature के हैं, government पे binding नहीं हैं. It is only an advisory nature recommendation. Emergence of CVC, Central Vigilance Commission, in 1964 affected the role of UPSC in disciplinary matters, as both are consulted by the government while taking disciplinary actions against a civil servant. जब से 1964 में सीवीसी बना है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना है, तो डिसिप्लिनरी मैटर में रोल ऑफ यूपीएससी थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि दोनों से ही कंसल्ट किया जाता है, विजिलेंस वाले से भी और यूपीएससी से भी. अगर कोई ऐसा एक्शन लेना है किसी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट में, डिसिप्लिनरी एक्शन, तो दोनों ही बॉडीज को कंसल्ट किया जाता है. दैट्स वाई यूपीएससी का रोल थोड़ा कम हो गया है. नाउ दिस इज आर्टिकल वाइज डिटेल्स जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं. That is all for this video. If you have any doubts, you can post your doubts. You can consult us on any Telegram channel, any comment section of YouTube, or via our app. You can download our app from the Google Play Store with the name Raksha Academy. और आपके जो भी doubts या related things हैं, you can message us there. So that's all for today. Thank you and have a nice day.